Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you. I'm Sakshi, and I'll be your host for today's fun, interactive, and super creative event, Presentation of Ideas. Think, twist, and pitch. Organized by the Department of Media and Communication Studies in collaboration with Institutional Innovation Council and IQAC. This event is all about creation and innovation, testing your quick thinking, and showing off some brilliant pitching skills. So get ready to think differently. Get hard ideas, ways to never imagine, and pitch like a pro. Before we jump in, let me quickly review the institution's innovation council. The RICHM constituent was established on 21st November 2018 under the guidance of the Ministry of Education and Innovation Cell. Its main mission is to spark creativity, nurture entrepreneurship, and build an innovation-driven ecosystem. From hackathons and workshops, leadership talks, and entrepreneurship guides, IIC has been forefront turning ideas into action. And today's event is yet another exciting step in that journey. Today, we are honored to have with us Mr. Vineet Verma sir and the Steve Jobs Foundation. IIT college. Mr. Vineet Verma is an assistant professor with impressive 9 years of experience. Tanda. He has taught some of India's नहीं जाकर इतना मना कर Tuesday, and there is one of Federalism University of Delhi, a University, and we share minds. He holds a degree from the University of Delhi, Master in Communication from Uttar Pradesh University of Science, and a Master in Political Science. Notably, he qualified from the Advanced Education in 2017, currently pursuing a PhD at the University there. The Varmani area working on research includes digitizing, communication, new media, communication, marketing, and media design. We are truly honored to have you here. Now, let's give a big round of applause and once again. राहुल Thank you so much. इनसे ले लो I think it's also to invite Vineet sir. Kindly enlighten us. Thank you so much, Sakshi. So today we have this competition called Idea Showcase. So when we have this kind of competition, we need to know one thing. We have to put our everything whenever we are competing for something, for the position. So Idea Showcase is how you are presenting your idea here in this competition, how you are using your presence of mind, how you are well aware and versed with the communication and the words. We need to know this thing. And today in this competition, we will try to judge you on the basis of your clarity, on the basis of your analysis, presentation, confidence, and how you are, utilizing the time that you will get for the limited time for the words to make a brand and to write the pitch out of that. So we will judge on the basis of these parameters. And one more thing, all the best to all the participants present here. I can see the faces here from the BJMC, from the other department as well. And
All the best to you all. And let's put our 100% and let's start this event. Thank you so much.
हो, आप कहाँ हो, तो वो सब उसमें मेंशन हो जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। स्लोगन है योर फर्स्ट कॉल विल बी योर सेवर, यूज़र फ्रेंडली है। और जो मैं प्रमोशंस करूँगी वो मैंने लिए है मीम मार्केटिंग के थ्रू मैं इसकी प्रमोशंस करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है आजकल मीम मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इसलिए अगर मैं ऐसे मार्केटिंग करूँगी तो मेरा प्रोडक्ट और ज़्यादा ऊपर जाएगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब मैंने 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिए हैं जिनके थ्रू मैं प्रमोशन करूँगी। और उसके बाद एक मीम है कि फ़ोन के आप हो दीवाने तो दीवाने रह जाओगे, यूज़ भी नाउ और रिग्रेट इट लेटर। और मैंने Eyes. फोन और SOS, मैंने एक आइस फोन केस बनाया है। Good. Any questions, sir, ma'am? Stay. Thank you. Next. ठीक है। तुम वो नीचे बैठो ना। अच्छा, एक स्टेप पीछे। नहीं, हम जल्दी बात करेंगे। बैठ जा। भाई हेलो, ओए मेरा बैग। तो मुझे जो वर्ड्स मिले थे वो है रेन, फोन और एनर्जी। रेन फोन एंड एनर्जी। तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है रेनर्जी फोन। इसके अंदर ये होता है कि जैसे बारिश आ रही है तो हम हमारे फ़ोन फटाफट छुपा लेते हैं कि भीग ना जाए या कुछ हो ना जाए। तो मेरे फ़ोन में ये होगा कि जैसे जैसे बारिश की बूंदें आएंगी आपका फ़ोन चार्ज होगा। ये बारिश ये और यहाँ पे ये वर्क करता है हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक नोट पैनल से। यहाँ पे जैसे बारिश की बूंदें आ रही है आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, आपको अपना फ़ोन छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी सिचुएशन में अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है जहाँ पे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। इसके यूनिक फीचर है ड्यूअल एनर्जी, इको फ्रेंडली, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और स्मार्ट इंडिकेटर। ये यंगस्टर को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि यंगस्टर्स चाहते हैं कि कुछ यूनिक हो। अब जैसे कि हम आगे मॉडर्न ज़माना आ रहा है, मॉडर्न है ज़माना लेकिन और ज़्यादा सस्टेनेबल आ रहा है, तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे जैसे आपकी बारिश की बूंदें गिरेंगी तो आप अपना फ़ोन अच्छे से चार्ज कर सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपका फ़ोन फुल चार्ज है तो ये चार्ज करेगा। इसमें एक ऐसा बटन भी है जो इंडिकेट करता है कि आपका फ़ोन चार्ज कितने % है, तो ये आपको दिखाएगा कि आपका फ़ोन और चार्ज करना है या नहीं करना है। आप कोई भी सिचुएशन में कोई भी रोड साइड पे जा रहे हो, जो इसका मॉइस्चर वर्क करता है वो ऐसा करेगा कि आपको अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। बेसिकली ये यही है। और ये इसका ये मैंने बनाया है कि कैसे वर्क करता है। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है और इसकी टैगलाइन है एवरी ड्रॉप दैट चार्ज। So what if there will be no rain? तो मॉइस्चर तो रूम में होता है ना, जैसे एसी का मॉइस्चर होगा तो वहाँ से भी ये चार्ज होगा। But if there will be winters? मॉइस्चर फिर भी होता है एक एटमॉस्फेयर में, कैसा Winters में dryness होता है। थोड़ा सा मॉइस्चर तो फिर भी होता है। आप इसको कहीं भी Let's say I'm playing cricket under the sunlight. Then तो ये हाँ तो ये पानी के नीचे लेके जाओ। हाँ ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा। प्लस को पानी में डुबोना है। तो रेन की क्या वैल्यू हुई है सर? क्योंकि आप हर जगह जाके आपके पास रोड पे चल रहे हो तो आपको जल्दी वाटर नहीं मिल पाएगा। और रेन से आप फ़ोन बचाते हो। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कि बारिश आ रही है तो आपको अपना फ़ोन छुपाना नहीं है, अगर चार्जिंग नहीं है तो आप उसे चार्ज कर सकते हो। यहाँ बैठ। मेरे 3 वर्ड्स थे चेयर, वर्क और मूव। तो मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया है मूवेबल चेयर, जिसका मैंने नाम रखा है मूविया, मतलब मूव प्लस इजी विच मेक्स आवर लाइफ इजी। दोबारा वर्ड बताना। चेयर, वर्क, मूव। चेयर वर्क मूव। ओके। तो मेरी ब्रांड नेम है मूविया विच मीन्स मूव प्लस इजी विच मेक्स आवर लाइफ इजी। टैगलाइन है वर्क इन मोशन। तो मेरे ब्रांड के जो मेजर बेनिफिट्स हैं ये हमारे बेसिकली मैंने एक मूवेबल चेयर बनाई है जिसमें हमारा सेंसर इनबिल्ट होगा, जिसमें हम
अपने रॉन्ग बॉडी पोस्चर अगर हम बैठे हैं जिस तरीके से वो सेंस से बच जाएगा एंड देन वी गेट टू नो कि हम अपनी बॉडी पोस्चर ठीक कर सकते हैं। इसमें हमारा नेक आर्म रेस्ट एंड बहुत सारी फैसिलिटीज होगी, हैंड रेस्ट के लिए कुशन्स होंगे। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल से बनाई जाएगी। ये कंफर्टेबल होगी, हेड रेस्ट होगा, आर्म रेस्ट होगा, नेक रेस्ट होगा। इसमें AI कनेक्टेड भी होगा एज अगर हमारा जैसे BP और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हमारी आजकल वॉचेस में होती है वो हम इस चेयर में इनबिल्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमें अपनी हार्ट रेट देखनी है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, तो वो सारी चीज़ें भी इनबिल्ट होगी। ये हमारा 360 डिग्री मूव करेगा एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स जो वर्क भी करती हैं। उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने ऑफिस पे जाना है, वर्क फ्रॉम होम भी करना, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, तो उनके लिए बहुत ईजी रहेगी चेयर एज मोर कंफर्टेबल फॉर देम। ये पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उनको उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, उनका काम जो है, वर्क लाइफ जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा इसकी तरफ बिकॉज ऑफ दिस चेयर। इसकी टारगेट ऑडियंस होगी फ्रॉम एज ऑफ 22 to 40 ईयर्स। इसकी मैं प्रमोशन करूँगी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, क्योंकि हमारा ये वर्क लाइफ से कनेक्टेड है। एंड यूट्यूब एंड इसकी मैं वेबसाइट्स वगैरह होती साइट्स पे भी चलेगी। नहीं सर, अभी भी पल्स रेट, इनोवेशन क्या है? हार्ट रेट और पल्स रेट जो बताए थे वो अभी नहीं आई है। और ये प्रैक्टिकल है? हो सकता है सर, अगर वॉच में हो सकता है तो चेयर भी क्यों हो सकता है, अगर हम उसमें हैं। वॉच तो आपको अच्छे से आपके नर्व सिस्टम पे अपने जगह से छुपती है, तो ये और बेयर हैंड मतलब कपड़े के ऊपर नहीं ऊपर पहनते हैं हम लोग, नहीं, बट ऑन द चेयर हम लोग कंप्लीट कपड़े में बैठेंगे ना। बट जब अपनी चेयर पे अपना हाथ रखेंगे देन वी गेट टू नो कि हमारी पल्स रेट अगर हमें चेक करनी है तो हमें वो चेक करके बता देगा। तो हार्ट रेट वो भी वहीं से हाथ रखें। और भाई एक और शादी तो 40 मैंने एक में ज़्यादा पार्टिसिपेंट तो पार्टिसिपेंट हाँ तभी मना कर दे आजा भाई क्या भाई I am Chirag Dugani and my topics are borders, light and night. So नाइट borders, light and night. सही मिल गया Light and night. एकदम सही मिल गया। So my friend is non-alcoholic drink. सूफी एंड जो उसकी टैगलाइन है असर फॉर एवरीवन। तो जो सूफी है मैं अज्यूम करता हूँ कि हम सब में बहुत लोग ड्रिंक नहीं करते हैं एंड हम जब भी पार्टी में जाते हैं तो एक फोमो रहता है कि कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो तब तक हम पेंट और स्प्राइट के साथ काम चलाएं। तो सूफी इसलिए आया है जो आप लोगों की फुलफिल भी अंदर रखें एंड एक फोमो भी ना बैठे कि हम कोल्ड ड्रिंक या फैंटा या कोक के साथ कब तक एक सहारा चले। तो सूफी आप लोगों के लिए एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि नॉन अल्कोहलिक ब्रांड है एंड और बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम द पार्टी एंड अल्कोहल ड्रिंक एंड कीप असाइड फैंटा एंड स्प्राइट। सो सूफी ऑब्वियसली हमेशा सूफी का ये बोल रहा है और मेन चीज़ ये रही है सूफी कि कोई टारगेट ऑडियंस कि 18 लिमिट होनी चाहिए, 18 से अबव होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। सूफी आप में से कोई भी है सबसे मेन बात। और सूफी ये कहता है कि अब आ चुकी है राइट नाइट, अब आ चुकी है राइट नाइट। आप सबके मूड को लेके आप सबके मूड को कर रहे हैं लाइट, तो आप सबके मूड को लाइट करने अब आ चुकी है सूफी एंड
और आप समझ गए टाइम हो गया। अभी चल ओके आपने ना कोई भी चूज सकता है बच्चे भी सकते हैं बिलो 18 बिलो 18 बिलो 10 नॉट बिलो 10 तो आपने सारा कोई भी चूज सकता है कोई भी इन द सेंस ऑब्वियसली मैं ऐसा सर कॉमन में तो बस बच्चों ऐसे आप आंसर होते हैं नहीं आप ऐसे पूछोगे मुझसे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा शौक में भी एक फ्रूट बियर ड्रिंक आता है वो बच्चे भी वही तो मैं पूछ रहा हूँ हाँ ऑब्वियसली बात है अब इफ 13 वर्ड है ना राइट राइट है वाटर राइट का काम लाइफ बेसिकली ऑब्वियसली बात है आप अल्कोहल है आप अल्कोहल भी तो आप ऑब्वियसली बात है लाइट आप नाइट है आपकी नाइट को कोई लाइट मून लाइट रखेंगे एज अ पार्टी लाइट ओवर लाइट नहीं भाई थैंक सर थैंक यू अभी दिन लॉन्ग वीडियो है वो तो क्लोज वाली वो बना रहे हैं क्या प्रोडक्ट है एक रेडियो है रेडियो का नाम है सीडी रेडियो सीडी का मतलब मैंने यूनिक नाम रखा है इस रेडियो में क्या होता है कि मतलब कोई भी रेडियो को दे रहा है वो कस्टमाइज कर मतलब कोई भी कैसे भी टाइप के और मतलब रेडियो में खास बहुत सस्ता मिलता है बात अलग करवाती है मतलब से मैंने सोचा इंश्योरेंस के बारे में कि म्यूजिक सुनती इंश्योरेंस का आता है इंश्योरेंस का टाइम चलता कि कस्टमाइजेबल इससे जो है रेडियो के बारे में मैं रेडियो ज़्यादा नहीं कर सकता ज़्यादा और इससे जो है म्यूजिक से रिलेटेड है Now we have a cut. मैं पहले एक सवाल करता हूँ अगर आप अंधेरे में चल रहे हो और आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिले जो आपको लाइट दे तो विल यू बाय इट मैं लूँगी। एक बैग आपको अप्रॉक्स अच्छा बैग आपको थोड़ा तेज बोलो 3,000 ठीक है 3,000 में मिनिमम वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आपको सिक्योरिटी दे कि आप उसमें चीज़ें रख सकते मुझे बाय सिक्योरिटी सबको चाहिए तो दोस्तों मेरा जो ऑब्जेक्ट मेरा प्रोडक्ट है वो एक बैग है इस बैग का नाम है लूमो है अब आप कुछ भी लूमो होगा लूमिनस और अलाउंड होगा से दो वर्ड्स अलाउंड होगा बेसिकली हैरी पॉटर में हमारी करते हैं काला तो अलाउंड होगा और लूमिनस मतलब होता है लाइट मेरा जो प्रोडक्ट है बेसिकली बैग है जो अंधेरे को सेंस करके उसमें लाइट देता है अगर मान लो आप घर गए आपने बैग बनाया तो ऐसा नहीं कि अंधेरे में जब वो मोशन में रहता है आप चल रहे हो आप पीछे बैग है तो अगर आप अंधेरे में चल रहे हो उसको अंधेरा फील होगा तो लाइट जल जाएगी
ये मोशन से लगेगा, जैसे कि हम वॉक करते हैं हमारे स्टेप्स वो मोशन डिटेक्ट करता है तो उसमें स्टेप्स। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इसमें सिक्योरिटी होगी, दो सिक्योरिटी। पहली चीज़ हमारा बैग वाटर प्रूफ होगा, तो इसमें जैसे नॉर्मल बैग में होती है ना सिर्फ तरह से उसमें वो लॉक होती है। और दूसरा हमारा चेन लॉक जो अंदर है, तो ये दो सिक्योरिटी आपको। मैंने इसको पहले फिंगरप्रिंट रखा था, एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, जब हो जाएगी तो मैं इसका डेफिनेटली मॉडल ट्राई करूँगी। और इसकी यूएसपी बेसिकली यही थी कि इंडिया में या कहीं भी ऐसे बैग नहीं टू लाइट को सोच करके लाइट चला ये पे तो सेंस करके लाइट जलाते हैं, उनका मेरा फील हो रहा है। इसकी जो टैगलाइन भी होती है लॉक एंड बैग फुल। थैंक यू सो मच। वर्ड का बैग सिक्योरिटी और लाइट, इसीलिए मैंने आपसे 3 सवाल करे थे कि अगर आपको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो आप देंगे, अगर देंगे आपको कुछ लाइट दिखाई देगी और बैग ऑब्जेक्ट दे देंगे कॉलेज का ये चाह आई वुड से कि जैसे बहुत लोग ना कॉलेज पहले तो से कि बहुत लोग होते हैं ना इवनिंग ट्रैवल नहीं करते, मतलब बहुत कम करते हैं, 5 पहले चलते हैं फिर अंधेरा हो जाते हैं, उनको शॉर्ट ऑफ डर लगा रहता है। तो एक बैग उनके साथ में शॉर्ट ऑफ लाइट दिखा दें कि हाँ यार मतलब उनको शॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल रहेगी। अगर मान लो कि आप रोड चल रहे हो, आप रोड चल रहे हो और आपको मेरे को आता दूसरा में रहेगा नहीं यार रोड चेंज है, अगर आपके पीछे बैग रहे तो आपको रोशनी दिखा रहा हो तो गवर्नमेंट के नाम जा सकते बेसिकली बैग रेडियम से बना हुआ है, वो ऑलरेडी जलेगा। सिक्योरिटी है कि आपको लाइट प्रोवाइड करनी है, मतलब आप अंधेरे में नहीं रहोगे क्यों रूट चेंज है इधर दूसरे साइड अब अंधेरा होगा और बैग इल्यूमिनेट करेगा क्या रेडियस होगा लाइट आएगी ना पूरी थोड़ी तो ऑप्शन दिखाएगा। आप का फोन चार्ज है, बैग को चार्जिंग की जरूरत नहीं है तो मेरा प्रोडक्ट यूज कर लेना। प्रमोशन हम इससे ट्राई करेंगे। अच्छा अभी और भी अभी तो इसके क्या बताओ गुजरात में आप जानते हैं बात चाहिए आप आगे लोग लेंगे चला चला चाहिए पर्सनली इसलिए बोला अपना नहीं कल बात है हम ले मैंने तो पर्सनली यूज के बनाया था थोड़ा एक्टिविटी तो आगे ना मैं आगे की बात में एक्चुअली एरिया बहुत बेकार सिक्योरिटी बेसिकली अंदर जो कुछ सामान होता है उसको लॉक लगा तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड उसमें लाइट से सिक्योरिटी मिलेगी। इस ऑर्डर में कंफर्टेबल अंदर ही फील होगे कि आप हमारे पास लाइट है तो तीन पर चलने में कंफर्टेबल होगा जिससे सेफ या नहीं होगा लाइट यार बेसिकली लाइट के चेंज ऑफ आउटसाइड से तो वो तो उतना भी तुम्हें दिखाने का और रेडियम से बैक पूरा नहीं होगा क्योंकि देखिए कॉर्नर या जो सब ट्रेडिंग पार्ट होता है वो रेडियम फिर उसके अंदर हाँ तो सामान तो खाली रख लेंगे तो रेट तो आएगा ही ना। मतलब अगर तुम्हें ऐसा वाला तो तुम जाना चाहती हो कि रेट आएगा अरे यार लेकिन मेरे बैग का रेट इतना थोड़ी होगा मैं तुमसे सोच रहा हूँ अभी आपके हिसाब से आपका बैग का रेट कितना होगा आप उतना नहीं होगा इतना लगे दे सकते नेक्स्ट क्लास जानवी बात भी अगर नहीं की तो स्क्रिप्टेड है मान के चल मैंने लिटरली नहीं किया है मिरर ऑफ स्माइल का कि आप एक्चुअली यूजिंग स्माइल इन मिरर इट इज अ स्मार्ट वॉच योर फिटनेस ट्रैकर मेरी टारगेट ऑडियंस होगी जितने भी एथलीट्स स्पोर्ट्स पर्सन और जिम एंथुसियास्ट है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं बेच रही हूँ मेरी टैगलाइन होगी अ मोटिवेशन एंड अ मिरर टू योर डेली फिटनेस ट्रैकर ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इवैल्यूएट करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज वेरी इजी टू वियर इट इज अ स्पोर्ट्स बैंड which will measure your
heart rate, pulse rate, and smile के यहाँ पे ये relevance है जैसे push button होते हैं, मतलब push notification होते हैं कि did you have enough water today? Did you have enough water today? Did you walk enough? तो steps count करना, तुम्हारी diet का track करना, तुम्हारी fitness, तुम्हारी gym, तुम्हारी walk, that is all related to body health. And a healthy body leads to a healthy mind, eventually leading to the happiness. इवनिंग वाले रेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 ओए दिव्यांशु तान्या मीटिंग में है ना 15 16 17 बिगिन ले इसमें steps count होते हैं motivation के क्योंकि push motivation did you have enough water today? Did you smile today? Did you walk 10,000 steps? Did you have enough rest? तो वो भी जितनी भी हमारी push motivation होती है that is university of life. दूसरी चीज रिमाइंडर constant reminders जितने भी athlete लोग होते हैं जितने लोग जिम करते हैं तो it actually keeps a track of your routine of your fitness. मेरी target audience athlete sports person and age group is 15 to 60 years. And मेरी marketing would be review because किसी भी product को देखने के लिए I need to have to approach somebody how to use it. जब हम भी कोई ऐसी work लेते हैं तो we go to YouTube. So I can use YouTube for my marketing as well as Instagram. बाकी और मुझे भी जो है कि it has a very good and aesthetic design to it. तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत time लेके use करते हैं. It is actually a part of your personality that you carry. So I will offer good design and it will have attractive features to actually influence you to take them back. कम बोला कर and how And mirror is a reflection of your daily situation that it is a mirror to your inner many metaphysics actually mirror. thank you Over 1 billion tons of food are wasted annually in per year. So this report is from UNP. And in our country, India, almost 20 करोड़ की आबादी जो है वो undernourished रह के starvation और hungry होती है. तो लोगों को खाना नहीं मिलता है. तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो जैसे आजकल फूड डिलीवरी ऐप का तो आपको सुना ही होगा कि 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है और स्विगी जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप जो आपको बुक करके आपको ऑर्डर करते हैं. तो व्हाई नॉट वी कैन टेक फूड वेस्टेज जैसे कि बहुत सारा खाना और बड़े से पूरा खाना वेस्ट होता है. तो व्हाई वी कैन नॉट यूज द ऐप तो हम अपने जो भी खाना हमारे घर बचता है तो उसको ऐप में दे सकें सो दैट ये खाना जो है वो उन लोगों के पास है जो खाना रोज का मिलता नहीं है स्टारवेशन के साथ मतलब खाना नहीं खाते तो वो सो जाते हैं और बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है और वो सब 2 टाइम का खाना खाएंगे उनको बहुत
होती है। तो हमारे मेरा ऐप है वो ऐप ये करता है कि लाइक जिनके भी घर पे या फिर किसी होटल का खाना बच जाता है तो ऐप पे रजिस्टर करेंगे और अपने फूड का नाम वगैरह सब करके लोगों को मतलब जो भी हमारे ऐप के लोग हैं उनको बताएंगे कि यहाँ पे इतना फूड है। हमारे यहाँ का एक पर्सन जाएगा उनको वहाँ पे और उधर से फूड लेकर हमारे यहाँ आएगा। अगर वो फूड एडेबल होगा तो उस फूड को फ्रेशनेस के साथ और पैकिंग के साथ उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग अंडर मैरिज का और जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। एंड जो फूड अच्छा नहीं होगा जो एडेबल नहीं होगा तो खराब हो लाइक इंडिया इन्फॉर्म करती है तो वहाँ पर खाना जल्दी खराब होता है। खराब हुआ फूड को हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में डालेंगे। पहले उनको ड्राई करेंगे उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे मटीरियल्स वगैरह डालेंगे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ये फर्टिलाइजर्स हम बेचेंगे फार्मर्स को एक फार्मर्स को सो दैट दे कैन यूज इन आवर और मेरे जो ऐप का नाम वो खाद्य है। खाद्य का मतलब होता है एक वर्ड में खाद्य का मतलब होता है खाना और दूसरे वर्ड में जो हम खाद डालते हैं फर्टिलाइजर। तो इसमें यही है कि जो और अगर मतलब जितने लोग जैसे मैंने रजिस्टर किया है और मेरे यहाँ पे खाना बचता रहता है तो हम आपको एक वो रिसीट देंगे उसमें एटलीस्ट 10 टाइम्स अगर आपने 10 टाइम्स खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपको एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दैट विल बी ऑफ अप टू 60,000 और लाइक 1 लाख तक वो कॉस्ट में आपको मिलेगा अगर आपने 10 फूड्स आपने हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जब हमें फर्टिलाइजर फार्मर्स को अपना सामान बेचना है तो हमें उससे बन जाता है तो हमारा रेवेन्यू और बेसिकली हमारा जो काम है जैसे हम सोशल वर्क की तरह प्लस प्रॉफिट की तरह। तो मेरी टैगलाइन ये है कि आहार ही जीवन जीने का आधार जगह सोशल वर्क करते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो तो हमें वहाँ से पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो अभी काम करके आते हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि घर पे खाना बनता नहीं है और वो बहुत नीडी है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड स्विगी जोमेटो से खाना मंगाना। तो हम वहाँ जाके ढूंढेंगे उन लोगों को रखेंगे खास 10 जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है लाइक रूरल एरिया उधर जाके हमारे लोगों फिर आप कितना एरिया कवर करेंगे तो फर्स्ट एरिया में स्मॉल एरिया देखेंगे तो लाइक 100 डेवलप्ड how do you generate your revenue or first of all you need to know number of people in your company human resource again you have to pay them because you are totally doing the social work so how do you able to balance your expenses हमारे यहाँ 10 लोग रिक्रूट कर रहे हैं तो हम फर्टिलाइजर जो खाना वेस्ट हो चुका है यूज से है नहीं उसका फर्टिलाइजेशन करेंगे मतलब फर्टिलाइजर बनाएंगे और उसके बाद हम उसको एक फार्मर के लिए बेचेंगे तो वो जो परचेज करेंगे उसका रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और अगर वो भी काम नहीं आए तो जो भी फूड वेस्ट हो रहा है उस सब कुछ और चीज़ बनाने की लॉकडाउन में काम रोबोट एंड टी तो हम इन तीनों को मिला के कुछ बनाना था तो मैंने क्रैश से क्रैक क्लीन से क्लीन किया और रोबोट का मैंने ट्रैवलिंग बोर्ड बनाया है एक ऐसा रोबोटिक मशीन जो हमें टीवी में है जो कि अपने ओनर की वॉइस कमांड फॉलो करेगा और उसके हेल्प से क्लीन पे हेल्प साफ सफाई करेंगे और इसकी टैगलाइन होगी क्रैश एंड क्लीन मेक्स ट्रैवलिंग।
यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने घर में जैसे कि दीवार की सफाई चल रही है आजकल, उसमें हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर मुझे इसकी मार्केट होगी तो मैं Amazon, Flipkart पे यूज करूँगी या फिर इंस्टा पे। और ये चार्जेबल भी होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज होगा। Good afternoon everyone. Let's go. So my V1 was pen, screen and translate. Okay. So इससे मैंने जो बनाया है तो properly integrate करके all the keywords into one page. So a pen that translates words into real life images or visual representation of the thing that is being written by a student or anyone who uses it. वाह, ऐसा प्रोडक्ट बड़ा समझ नहीं आया। बेसिकली गाइस वो क्या है, शक्ल आका की घूम वाली पेन। Translate words into real life pen, translate and screen. 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 ओन वाली स्क्रीन Thank you. बात Pen that translates words into real life images or visual representation of the thing that is being written by a student or anyone who's using it for the purpose. Because there is a saying, a picture is worth 1,000 words. मेरी tagline भी इसके according है, a picture just needs few words. Is my tagline. So ये बेसिकली छोटे बच्चों को टारगेट करने के लिए है, जो हम कहते हैं कि बच्चे लिखने से ज़्यादा देखने से सीखते हैं। इससे ये भी होगा जब वो लिखेंगे तो एक प्रॉपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उनके सामने होगा। जो भी चीज़ वो लिखेंगे प्रॉपर फोन में आएगा। मेरे पेन का नाम है पेन /e पेन से होल्ड करके पेन की बनाया है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ AI, जिससे अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर कैसे बनेगी तो उसमें AI फीचर है कि जो भी वो लिखेगा वहाँ से आपकी पिक्चर आपको फोन स्क्रीन का एक ऐप होगा उसमें कनेक्टेड आपको दिख जाएगी। ऑल्सो इसमें एक और फीचर है, पेन स्कैन एनी वर्ड दैट यू वांट। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर आपको भी आपको समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए हमारे भी पेपर आने में कुछ नोट्स में समझ नहीं आ रहा है, हम उसको स्कैन करते हैं तो एक प्रॉपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद रिटन एक्सप्लेनेशन उसमें आपके फोन में आ जाएगा बहुत आसान भाषा में। और अगर कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जो आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो भी आपको नहीं समझ आ रही, वो उसको आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। इट्स इंटीग्रेटिंग द वर्ड ट्रांसलेट एंड मेरी टारगेट ऑडियंस काफ़ी नीश है, बिकॉज ये प्रोडक्ट भी बहुत नीश है, काफ़ी नीश और एक्सपेंसिव किसी चीज़ें तो काफ़ी नीश ऑडियंस के लिए है। दैट्स व्हाई इट इज टारगेट ऑडियंस 8 to 25 8 years की छोटे बच्चों को भी आप लिखते हो, इससे होगा कि उनको लिखने की आदत पड़ जाएगी और वो लिखते लिखते जब सामने स्क्रीन में देखेंगे तो दिल भी एबल टू ईज़िली ग्रैस्प, बिकॉज पिक्चर ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करवाती है। ऑल्सो यदि आप 25 एज का बंदा कॉलेज जा रहा है, कोई भी एज के बंदे और कॉलेज में उन्हें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बहुत अच्छा उनके पास होगा कि अपनी लैंग्वेज में बहुत ईजी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नोट्स को देख सकते हैं। पिक्चर की बहुत ईजी लैंग्वेज और ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में होगा, बड़ी सिटीज़ में तो मेट्रो सिटीज़ है, ये हमारे कॉलेज में रूरल एरिया में इसको खरीदेगा नहीं, उसका खर्चा भी करेगा और ये काफ़ी नीश प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच। पिक्चर में ट्रांसलेट होता है, ये उसका एक सेकंड फीचर है। या आप पेन से स्कैन कर सकते हो, आप लिख रहे हो, आप पेन से स्कैन कर सकते हो चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आपकी भाषा में ट्रांसलेट होगी। इसमें स्कैनर भी होगा जिससे कोई भी वर्ड को स्कैन भी कर सकते हो। आजकल आते हैं देखें कहाँ पे तो फ़ोन में आपकी स्क्रीन में ऐप आएगा, उसी ऐप में आपको सब पिक्चर बनी आ जाएगी। वायरलेस पेन, यस सर, कनेक्टेड टू योर ऐप आया ब्लूटूथ। कॉस्ट ऑफ इट इट विल बी अराउंड 5 or 600। यस सर, क्योंकि बहुत नीश चीज़ है और काफ़ी AI भी है और एकदम जैसे आप लिखो तुरंत वहाँ पर आपके पास आता है। इट्स वेरी चीप, आई नो, बट पेन पे भी इतना खर्चा करना भी बहुत ज़्यादा है। But according to technology requires good, yes, like money to make the product. But in the AI है कि that we can integrate it to that will be
to read something like scanner is expensive thing. Okay, definitely goes on the price of it. Definitely goes on the price of it. Anyone else? क्वेश्चन है जानने का नहीं, बच्चे से स्कैन करिए तो ये बेसिकली बच्चे को बेसिकली बच्चे के लिए वो लिखेगा और उनको जो लिखा है अच्छे से समझ में आए तो उसके सामने पूरी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन स्कैन बड़े लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कोई नॉवल पढ़ रही हैं जिसकी आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ लगे तो यू कैन स्कैन इट, वहाँ से आपको एक प्रॉपर आपके पास एक पूरी रिप्रेजेंटेशन रिटन इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत आसान लगेगा। और रही बात बच्चे की तो पेरेंट्स साथ में पूछ करते हैं तो पेरेंट्स को स्कैन करने चाहिए। आपको नहीं लगता है चीज़ों की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इसी चीज़ से अडिक्ट हो जाएंगे पढ़ाई नहीं, के वो साथ पेरेंट्स के ऊपर है, दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंटिंग। बट वो today's parenting generation parents are no safe बट आई वुड से अगर पेरेंट्स फोन लेते हैं तो उनकी उसको ना पेरेंटिंग पर बच्चा कुछ भी देख हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप बट फोन बच्चा अडिक्ट हो गया वो पेपर में भी ड्राइंग देखो करके बच्चा आजकल वैसे भी सब कुछ इंटरनेट से एडिक्टेड है। अगर बच्चा अडिक्ट हो गया ड्राइंग और पेपर में भी वो लिखना चाहता है मैं ड्राइंग बना फिर तो पेरेंटिंग कर फिर आप क्या करोगे आज बट our problem ना, हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, अभी उनको देखना हमारा काम नहीं है। बच्चे का एडिक्शन हमारा काम नहीं, हमें अपना प्रोडक्ट ज्वाइन ही बनाएंगे। यस एग्जैक्टली, तो ऐसे ही तो बच्चे हॉबी ही ना खरीदे कि असली गाड़ी चलाओ ये क्या बात हाँ ये what will be your actual manufacturing cost? Because you are using a lot of technology and we आई don't अभी think- रिसेंटली वही बोला but we हमारी are not that technology ahead of our time कि हमें मिल जाएगा कि हम बट ऐसे स्कैन करने वाले पेन so manufacturing cost something will be around below 1000, like around 800 to 900 will be required for manufacturing cost for selling price हमारा 300 to 400 का हमारा जो selling price है एक्स्ट्रा वहाँ से बढ़ जाएगा 700 800 to 900 will be manufacturing cost था because सिर्फ एक AI हमें उसमें डालना है and scanner डालना है ये हो जाएगा बहुत छोटा सा नंबर है आप कौन है इसमें कोई so all participants ये तो ये दूसरा बात कर लो फॉर्म चाहिए मेरे को फॉर्म बोल रहा भर सकते हो वहाँ पे नंबर खत्म होगा ना या तो दिव्या ये डिज़ाइन देना ऐसे जॉइन करना है कैसे करना है बी वे में यहाँ बैठ कर बता दे इस बात डिजाइनिंग में बन रही है सर ये मेरा इवेंट थोड़ी है मैं दूसरे इवेंट में था सर कौन सी सर है अभी तुम्हारे डेकोरेशन में ठीक है डबल साइड टेप है डबल साइड टेप थी हाँ, वही रटन चाट
भाई क्लाइंट में ऑर्गेनाइजर्स बाकी को बोल दे, किसी और को बोल दे, कौन कर दो। ओके गाइस, तो फर्स्ट पोजीशन तो आ चुकी है, बट सेकंड थर्ड के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि अब 4 लोगों के बीच में टाइम है। फर्स्ट इज दिव्या, जिनका नाम ही आगे आ गया। Then second is B.N. Vasu. Third is Atar. And fourth is Art. Okay, guys, so हमें सबके बाद ये सब सेकंडरी हाँ, लेकिन ये सब को सेकंडरी और थोड़ा बताना है। इसका थोड़ा प्रैक्टिस से बता दिया कॉल भी कर रहे हो। एक मिनट से पहले जल्दी Thank you.
per image. तो वो कॉस्ट करता है अराउंड 600 5 अराउंड होंगे। तो जो मेरा जो जूता है वो स्टेप्स काउंट करेगा और इसमें 2 एडिशन होते हैं। पहला जो बड़े होंगे छोटे लोगों का जूते अराउंड 7 मिनट वेट है और उसमें बच्चों में 9 मिनट छोटे बच्चों के और बड़े लोगों को स्टेप्स काउंट करेगा। स्टार्टिंग ड्यूरेशन होगी 15 मिनट ड्रीम म्यूजिक
तो चलिए तुम दोनों करा देंगे बाकी सब बैठ जाओ गाइस, जो विनर्स है वही खड़े रहे। मैं तो ऑर्गेनाइजर हूँ। आजकल लोग बुक से बाहर भाग रहे हैं, हम इसी को कर सकते हैं। तुम चलेगा वेबसाइट की आपका AI चैट जीपीटी तो वेबसाइट का अगर तुम बुक करते हैं ना ये लगी लकी नहीं, आप स्टोरी बनाने का इसका तो बहुत बड़ी फीलिंग है। ये सही है, अगर होगा तो बढ़ ऐसी चीज नहीं पाता। थैंक यू। कैसा लग रहा है? अरे देखना कहाँ रहेंगे वो? ये खुद से आए हैं। बैठ जाओ। हाँ जी। मैं तो बस गाइस बैठ जाओ।